सलाम, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं ये देरी के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा कि हम एक गाना शूट कर रहे हैं और मेरे जो फादर है ऋषि कपूर, वो मेरे से 10 गुना और बिज़ी है, उनकी डेट्स मिलती नहीं है और आज लास्ट दिन था, तो हमें गाना कंप्लीट करना था। आज से अगले 20 दिन आप लोगों को मुझे झेलना पड़ेगा। मेरी फ़िल्म आ रही है बेशरम, गांधी जी के बर्थडे पे 2 अक्टूबर को। तो आप खुल के मेरी पैंट खींच सकते हो, जो भी आपको सवाल पूछने हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बेल्ट टाइट बांध दूँ। अगर फिल्म गर्म नहीं हो रही तो मैं खुद अपनी पैंट निकाल दूँगा। First you taught us Badtamizi, and now you are teaching us how to be a Besharam. So please pardon me the next words which come from my mouth. My question is very simple. After a refreshing trip to Ibiza and in Sri Lanka, is an engagement on the cards for Ranbir Kapoor? Well, they're two separate questions, so let me answer the last part of the question first. There was a report that Midday had said that I'm getting engaged on my birthday. There is no truth to that. And I would just like to request them one thing. You see, when a boy proposes to a girl, whenever in life, it's a very important moment for the girl's life. So don't spoil my surprise. But I'm definitely not getting engaged now, not for some time, or getting married. I don't have any of those plans. What was the second part of the question? Yeah, I was Badtamiz first, then I'm Besharam now. I love these titles. You know, I think for an actor, they're always remembered by the titles of their movies, or the title of their character. So I am all pro this. If in my next film, if they want to call me, I can't say Besharam Kapoor. If they want to call me Nanga, they can call me that also. I'm open to any title. But also a story saying that Ranbir needs to be not seen around with his companion because that does not do good for his Casanova image, which works with his audience. What is your reaction to this? Well, my image has been made by my movies, by tabloid papers, magazines. I can't change that. I am open an umbrella in my life right now in my life, and I'm very happy with the work I'm doing, with my personal life, my family, my friends, with everything. So it doesn't really bother me. I'm not here to make an image. I'm not here to break an image. I believe I'm arrogant enough to know that I'm a good actor, and people will like me for my work. So this image है Casino image, if I get married in 5 years, 10 years, the next actor after me who is single, he'll probably get that image. I'm not trying to work on an image. Right now I'm just being an actor and trying to sell my movies. Ranbir, there was a news report, some time back, wherein your father, the respected Rishi Kapoor sir, said that Ranbir is seeing A, B, C, and D, wherein A doesn't know B, B doesn't know C, C doesn't know D. What is your reaction on this? Yeah, even I read that, and my mother also. Actually, I wasn't out here. मैं श्रीलंका में shoot कर रहा था जब ये बाहर आया था. तो I think he meant it in good humor. He didn't really want to belittle anyone. I think somebody asked my father about my relationship with somebody, and my father himself doesn't know how to answer questions when it's directed to my personal life. He gets very flustered, so he probably said that. But maybe he missed out X, Y, Z also. But it wasn't said in to hurt anybody or hurt anyone's sentiment. But are you going strong with anyone right now? I am going very strong with this movie right now. I'm very excited about that. That's the only excitement in my life right now. When I am going strong with somebody where I am ready to spend my life with, I'll be the first one to announce it. I'll be first one to speak about it. But as of right now, I'm just being a Besharam, that's it. सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही आपकी रिलेशनशिप के क्वेश्चंस को लेकर हुई है. जो अभी बात आपने की कुछ टाइम पहले भी आपने कहा था कि जब आप एक रिलेशनशिप में होंगे तब आप सबको खुलेआम कहेंगे कि आप रिलेशनशिप में है. बट रणबीर, आप श्रीलंका में थे पिछले 1.5 महीने से कई खबरें अखबार में आ रही हैं अबाउट योर रिलेशनशिप विद कटरीना कैफ. अगर आप बताना चाहें कि वाकई में कुछ है, सच है, गलत है, या फिर दोस्ती है, या फिर दोस्ती से आगे बढ़कर चीज़ें हैं, कुछ भी बताना चाहें. Well, वो यही मैं कह रहा था कि जब मैं नया नया आया था फिल्म इंडस्ट्री में, मैं खुल के बात करता था अपने रिश्ते के बारे में. आई थिंक क्या होता है कि पहले तो आपका जो स्पॉटलाइट है वो काम से निकल के आपके पर्सनल लाइफ में आता है. आज वैसे ही मिस्ट्री मर रही है एक एक्टर की. वी आर ऑन टेलीविजन डूइंग एड फिल्म्स, प्रमोशंस, फिल्म रिलीज़ हो रही है. तो बिफोर यू गेट बोर्ड ऑफ मी, आई वुड लाइक टू प्रोटेक्ट माई लाइफ. आई डोंट वांट माई लाइफ टू बिकम अ रियलिटी शो कि मैं एक बिग बॉस का कंटेस्टेंट हूँ और आप जो मैं बाथरूम जा रहा हूँ आपको पता चल रहा है, मेरे बेडरूम में क्या हो रहा है आपको वो भी पता चल रहा है. जो आप लिखना चाहते हो, अगर आपके पास फ़ोटोज़ है, आप खुल के छापो. मुझे उससे कोई परहेज़ नहीं. बट जितना मैं अपने पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, जितना
यू नो जस्ट टू हैव अ गुड बैलेंस्ड हेड, मैं वो कोशिश करूँगा। अब तक की आपकी सबसे बड़ी बेशर्मी क्या है? बहुत लोग बोल रहे थे वो जो फ़ोटो आई थी पिज्ज़ा से, बड़ी बेशरम फ़ोटो थी, बट आई थिंक जो मेरी पहली फिल्म थी सावरिया, उसमें मैंने टावल गिरा दिया था। आई थिंक पूरी दुनिया के सामने मैंने अपने पूरे नंगे शरीर को दिखा दिया था। उससे ज़्यादा बेशरमी क्या हो सकती है? Your fans would like to know if you're single or dating or. Tell them to call me, I will answer them myself. But you can answer. You want to know, say that, don't say your fans. Okay, I want to know. I am your fan. I am your fan. I want to know. प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आई हो, बाहों में कब आओगी? Well, I'm single till I get married. I think I believe in that saying. So yeah, tell them that. Tweet about it. देखिए, मैं भी टैबलॉइड पेपर्स पढ़ता हूँ, मैं भी न्यूज़ चैनल्स देखता हूँ। जब किसी और के बारे में खबर आती है तो एक्साइटमेंट होती है, अरे ये क्या हो रहा है, यू नो इन लोग कहाँ जा रहे हैं, इन लोग क्या कर रहे हैं। जब खुद की आती है तो थोड़ी बहुत हवा टाइट हो जाती है, बट आई थिंक मैं बहुत बिजी था। मैं बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग कर रहा था श्रीलंका में, बहुत घुस चुका था फिल्म के अंदर, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं यू नो कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया या मैं डिप्रेस हो गया। हाँ, मैं बिजी था। और फिर मैं भी अभिनव से बोल रहा था कि हर एक्टर का एक ट्रेडमार्क होता है। शाहरुख खान का ये है, बच्चन साहब का ये है, तो मैंने बोला, तो मैंने सोचा कि मैं भी हर फिल्म में कुछ रखूं, तो मैं भी हर फिल्म में अभी सुसु करूंगा, शायद वो मेरा ट्रेडमार्क रह जाएगा। बट और दूसरी चीज़ है कि एक आर्टिकल आया था कि हमने सलमान खान का मजाक उड़ाया। ऐसा कुछ नहीं है। जो किरदार मेरे फादर इस फिल्म में निभा रहे हैं, उनका नाम है चुलबुल चौटाला। और एक सीन चल रहा है जहाँ वो मुझसे कहते कि बबली छोड़ दे मुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि चुब्बे चौटाला, चुब्बे मोटे, सिर्फ चुलबुल नाम रखने से कोई दबंग नहीं बन जाता। तो इट इज़ फॉर द कैरेक्टर, हम किसी का मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे। मेरा सवाल ये है कि जब ऑडियंस नया गाना वगैरह देखते हैं तो वो तो देखते हैं रणवीर कपूर बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, जब आप देख रहे थे ध्यान से तो आप क्या देखते हो उसमें खास? ये हर एक्टर कहेगा कि जब भी वो खुद अपने आप को देखता है तो उनको अच्छा नहीं लगता, कि यू नो सोचता है कि अरे यार ये मुझे अच्छा करना था, अरे वो नेक्स्ट टाइम और बेहतर वो और बेहतर करेगा। लेकिन मैं ऐसा एक्टर नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ वाह क्या शॉट दिया है। थैंक्स। ट्रेंड तो पता नहीं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे मीडिया, टैबलॉइड्स, जर्नलिज्म से कोई परहेज़ नहीं। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आज जो कुछ जिस मकाम तक मैं पहुँचा हूँ ये आपकी वजह से, आप लोग ने मुझे यहाँ बैठाया है। एंड अगर इफ़ पीपल आर इंटरेस्टेड इन माई लाइफ, अगर वो मेरे बारे में पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप कुछ भी लिखो ना, अच्छा एक मिस्ट्री रहेगी मेरे बारे में, क्योंकि जो मैं असली में हूँ, इसलिए मैं कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं हूँ। क्योंकि अगर एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे हूँ तो इतना बोल दूंगा कि लोग शायद पक जाएंगे मेरे से, तो शायद इससे मिस्ट्री रहती है एक एक्टर की। तो आई एन्जॉय, यू नो, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं भी वैन में जब शॉट तैयार हो रहा है न्यूज़ चैनल ऑन करके, मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत एंटरटेनमेंट मिलता है। और ये शो बिजनेस है यार, आई मीन दिस इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट, सो आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। एक और सवाल लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, रणबीर आएंगे, उस सवाल का जवाब देंगे रणबीर। सभी ने पूछा उस पिक्चर्स के बारे में, लेकिन आपने अभी तक क्लियर अपना आंसर नहीं दिया है। उस पिक्चर्स के बारे में 2 शब्द अगर कहना हो तो क्या कहना चाहेंगे जो पिक्चर्स आई हैं, क्योंकि आपने डिप्लोमेटिक आंसर्स अभी भी दिए हैं। वेल, मैंने जवाब दिया, मैं एक और जवाब सोचता हूँ। उस पिक्चर में कटरीना कैफ बहुत सुंदर लग रही है और इबिजा भी बहुत ही सुंदर जगह है, प्लीज़ जाके आप विजिट कीजिएगा। रणबीर कपूर कैसे दिख रहे हैं उसमें, उनके बारे में ज़रा कमेंट आप बोलो, मैं खुद के बारे में क्या बोल सकता हूँ। आपको मज़ा आया देखने में? बहुत मज़ा आया। हाँ? सभी लोगों को मज़ा आया, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? साथ में मैंने भी इंजॉय किया। थैंक यू। ये रणबीर कपूर से जानना चाह रहा था मैं, क्या यही कि आपको मज़ा आया, आपने खुद भी तो देखा होगा ना। मैं तो इबिजा में था ना, मैं फोटो देख के मज़ा क्यों करूँगा, मैं तो इबिजा में मज़ा। जब आपको ये खबर मिली होगी, आपने मैगजीन्स पढ़ा होगा या न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या टेलीविजन देखा होगा, तो आपने एंजॉय किया कैटरीना के साथ इस पिक्चर के बारे में? नहीं, ये बहुत ही गलत सवाल है। आप कोई और जब आप यहाँ पर आए थे, आपने मेंशन किया स्टेज पर आते कि आप सवाल पूछे मुझसे, कोई भी सवाल पूछे, कहीं ना कहीं आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जो भी खबरें अखबारों में आ रही हैं, जो चीज़ें न्यूज़पेपर में चल रही हैं, जो पिक्चर्स इबिजा की आई हैं, पर जितने भी सवाल पूछे गए हैं आपने हर सवाल को अच्छे तरीके से गोल घुमा के आपने एक जवाब दे दिया है। तो आप एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछ लो, शायद उसका जवाब नहीं होगा मेरे पास। नहीं, सवाल वही है क्योंकि आप शायद लग रहा है प्रिपेयर थे कि आप जानते थे कि मैं कुछ प्रिपेयर नहीं था। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आया हूँ इसलिए, अरे हाय, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इसलिए आया हूँ कि मैं दबंग बोल रहा हूँ, कि मैं बेशरम के बारे में बात करूँ, अपना फिल्म प्रमोट करूँ।
मुझे पता था, एहसास था कि आप लोग मुझे ऐसे सवाल पूछेंगे, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, मुझे कोई परहेज़ नहीं। आप मुझे जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, लेकिन जिस तरह का जवाब मैं दूंगा उसे भी आपको कोई परहेज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मुझसे पूछ सकते हो तो मैं भी जवाब दे सकता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोग प्रिपेयर्ड हैं क्या सुनना चाहते हैं, इसलिए बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं। जब तक वो जवाब नहीं आ जाएगा आप सवाल पूछते रहेंगे। रणबीर, जब इस तरह के सवाल होते हैं, खास करके कैटरिंग से जुड़े सवाल होते हैं, जो पिक्चर्स वगैरह आई हैं, अपने गुस्से को मीडिया के सामने कैसे कंट्रोल करते हैं आप? यार मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। मैं बचपन से मैं मेरी जो पर्सनैलिटी है, कभी मैं एक फाइट पे नहीं घुसा हूँ, ना किसी को थप्पड़ मारा है, ना किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है। तो मैं उस किस्म का इंसान नहीं हूँ। एंड लाइक आई सेड, दिस इज़ शो बिजनेस। जब आप मुझे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं तो शायद लोग को इंटरेस्ट है मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में, और शायद मेरी प्रोफेशनल लाइफ इतनी अच्छी जा नहीं रही कि आप लोग को मेरे फिल्म्स के बारे में मेरे मुझे पूछ सकते हैं। तो शायद मैं और मेहनत करूँगा, अगले साल एक और अच्छी बढ़िया फिल्म के साथ आऊँगा। शायद उस वक्त आप मुझे कोई दूसरी छुट्टी के बारे में पूछे, नहीं आप मुझे मेरे फिल्म के बारे में पूछे। तो थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। ये जब मैं घर जाऊँगा तो मैं मम्मी डैडी से बोलूँगा कि आज भी मेरे काम के बारे में किसी ने पूछा नहीं, तो अगले साल शायद मैं और कोशिश करूँगा। रणबीर, आपने कहीं कहा था कि ऋषि कपूर साहब की अगर बात करी जाए, वो डायरेक्टर की पैंट उतार देते हैं जब मतलब क्या सीन है और कैसे पिक्चराइज किया जा रहा है और क्यों है, कई तरह के सवाल उनके थे। यकीनन होना भी चाहिए, इज वेरी सीनियर। तो अभिनव की पैंट उतारी या नहीं उतारी? इनकी चड्डी भी उतार देती, पूछ लेना। अभिनव, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मेरी बेल्ट की थिकनेस देखो, मैं एक से एक, स्टील की बेल्ट भी है, स्टील की अंडरवियर भी है, उसमें ताला लगा के रखता हूँ कि वो उतार ना पाए। तो उन्होंने कोशिश की कई बार, पर मैं सेफगार्ड्स हैं मेरे सारे, पुर्जे सलामत हैं। थैंक यू। इनको ज़रा माइक दीजिएगा, फाइनली कोई मेरे काम के बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज़, ए भाई, ओए उसको दे। शायद आप थोड़ा सा यही सवाल भी कुछ कैमरा सब ऑन रखना अभी। ओके, ये सवाल ये है कि खबर आई थी कि जग्गा जासूस में आप काम कर रहे हैं कटरीना कैफ के साथ। जगह जासूस अनुराग बासु डायरेक्ट कर रहे हैं। ये मैं अनुराग के साथ प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के बारे में। ये एक चिल्ड्रंस डिटेक्टिव फिल्म होगी, ऑन द लाइन्स ऑफ इंडियाना जोन्स मीट्स टिंटिन। इट्स लाइक अ पेट प्रोजेक्ट। तो हम बहुत मेहनत से अभी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। नवंबर में हम शूटिंग शुरू करेंगे। तो शायद मैं ये कास्टिंग अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वेट करूँगा, तो शायद और एक क्लियर मुझे एक आइडिया आएगा कि कौन इस फिल्म में। बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि जगह जासूस शुरू हो रही है। अच्छा रणबीर, आप चलते चलते आपके काम की इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन फिर भी आपने वो नहीं कहा। कहाँ हुई काम की बातें, कहाँ हुई? आप फिर घूम के वहीं आ गए। नहीं, अच्छा बोल, पूछो। मतलब इतनी बार कटरीना श्रीलंका गई, आप श्रीलंका से आए हैं, दोनों ही भाई साहब की फिल्में आप कर रहे हैं, लेकिन क्या डर है? बोल क्यों नहीं देते? क्या बोलूँ मैं? हाँ, हमें मोहब्बत। आप सुनना क्या चाहते हो? अरे हाँ, हमें मोहब्बत है, ये आप बोल क्यों नहीं देते? अब तो चढ़ गए। मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं पूछते यार।